भुवनाम्बोजमार्तण्डं धर्मामृतं पयोदरं योगीकल्पतरुं नौमि देवदेववृषध्वजं सत्संयमपयपूर पवित्रितजगत्त्रयं शान्तिनाथं नमस्यामि विश्वविघ्नोपशान्तये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेणे तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाण ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। श्री पंच परमेष्ठी भगवद्भ्यो नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय सद्गुरु, जय सद्गुरु, जय सद्गुरु। तत्वचर्चा में तत्वार्थ सूत्रना 6ठा अध्यायનું 24મું सूत्र एना उपर विचारणा चाले छे। कયું सूत्र छे? हाँ, सूत्र शू छे? 16 कारण भावनाओना नाम। 16 कारण भावनाओना नाम शा माटे मेन्शन कर्या छे सूत्र में? तीर्थंकर नामकर्मना बधा आश्रवनो अध्याय है। 6ठो अध्याय कया कया कर्मथी शू शू आश्रव थाय छे ए बधुं एमां बतावेलुं छे। तो नामकर्मना आश्रवना कारणों में पछी तीर्थंकर नामकर्मना आश्रवना कारणों विचारणा में 16 कारण भावनाओं वर्णन कर्युं छे। एमां नाम कोने याद कर्या छे? हाँ, रीटाबेन कितने नाम आते हैं? 1 2 3 4 5 बोलो माशा। माइक माइक लो। આપણે 16 ભાવના પૂરી થતા થતા 16 નામ યાદ કરવાના છે। દર્શન વિશુદ્ધિ, વિનય સંપન્નતા, વિનય સંપન્નતા, शील व्रतेषु अनाचार, अनतिचार, शील व्रतेषु अनतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग, संवेग, अभीक्ष्ण संवेग
अभीक्ष संवेग, शक्तितस् त्याग, शक्तितस् त्याग, तप, शक्तितस् साधु तप, समाधि, साधु समाधि, वैयावृत, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, अवश्य परिहारिणी, आवश्यक अपरिहारिणी, मार्ग प्रभावना અને પ્રવચન વાત્સલ્ય. પ્રવચન વાત્સલ્ય. 16 નહીં તો 8 નામ તો યાદ, અડધા તો યાદ કરવાના. હવે આજે શક્તિતસ્તપ એ ભાવનાનો આપણે વિચાર કરી રહ્યા છીએ. શક્તિતસ્તપ, શક્તિ પ્રમાણે અને શક્તિથી ઉપરવટ થઈને, એટલે શક્તિ ગોપવ્યા વિના શું કરવાનું? તપ કરવાનો, એટલે ઈચ્છાઓનો સમ્યક પ્રકારે નિરોધ કરવાનો. એ જ તપનું મુખ્ય લક્ષણ છે, ઈચ્છા નિરોધ. ને એ લક્ષણ ઉપર આપણે વિચાર કરતા હતા. ઈચ્છા નિરોધસ તપઃ. એમાં ઈચ્છાઓના ઘણા પ્રકાર આપણે જોયા. મુખ્ય રૂપે ઈચ્છા એટલે એના મૂળમાં જઈએ તો પરદ્રવ્યને પોતાના પ્રમાણે પરિણમાવવાની કંઈ ને કંઈ ભાવના, એવો ભાવ, એ મુખ્ય રૂપે ઈચ્છા કહેવાય. ઈચ્છામાં સ્વદ્રવ્યને પરિણમાવવાની તો એ ભાવના જ કહેવાય, એ કોઈને હોતી નથી. એ જેને હોય, એ જેને થાય, એ ઈચ્છા, એ જીવનું કલ્યાણ નજીક. કેમ કે ખરેખર કરી શકાય એવું જ છે. કેમ કે પરદ્રવ્યમાં આપણે કંઈક કરી શકવાને પરમાર્થથી સમર્થ નથી. પરમાર્થથી સમર્થતા કંઈ પણ કરવાની શેમાં છે? સ્વદ્રવ્યમાં. એમાં જ આપણું ચાલે, બીજામાં આપણું ચાલે નહીં. પણ આપણો પ્રયાસ ક્યાં જ વધારે હોય? વોટ વી કેન નોટ ડન, બસ જેમાં આપણે એ જે નથી કરી શકતા, વોટ વી કેન નોટ બી ડન બાય અસ, એટલે એમાં જ આપણું બધું પુરુષાર્થ ચાલે છે. ને એનાથી મળે શું પછી? જે કાર્ય અસંભવ હોય કે જે કાર્ય શક્ય ના હોય, એ કાર્ય કરવા આપણે જઈએ ને પછી એ થવાનું તો નથી જ, તો પછી શું મળે? દુઃખ, વ્યાકુલતા. બધું ખબર છે આપણને, પણ છતાંય પરિણતિ એમાં જ જાય, એમાં જ જાય. કેમ જાય? અનાદિકાળના સંચિત સંસ્કાર છે. તપ એનું જ નામ છે, જે અનાદિકાળના કેટલાય જન્મોના સંચિત જે સંસ્કાર છે, આ જે દ્રવ્ય સંસ્કાર છે, દ્રવ્ય ભાવરૂપ જે સંસ્કાર, એમને જ નષ્ટ કરવાનું નામ તપ છે. એટલે ઈચ્છા નિરોધ એ મુખ્ય. જે ઇષ્ટ લાગે એ આપણી પાસે જ રહે, ને જે અનિષ્ટ લાગે એ આપણી પાસે આવે જ નહીં, એવી ભાવના. પણ આ બધું પુણ્ય અને પાપના આધીન છે. આપણું પુણ્યનું ઉદય હશે તો આપણે જે ઈચ્છ્યું હશે એ થઈ જશે. તો આપણને એવું લાગે કે હા, મેં આવ્યો ભાવ કર્યો કે મેં કંઈક પ્રયત્ન કર્યો તો થઈ ગયું. પણ એ થયો કેમ? પુણ્યના ઉદયથી. એ જ ભાવ થોડા દિવસ પછી ફરીથી કરજો, કદાચ નહીં પણ થાય. કેમ કે એ દિવસે પુણ્યનું ઉદય હોવું, દરેક વખતે કોઈ પણ ઈચ્છા કરી હોય એ ઈચ્છા પૂરી થવામાં પુણ્યનો ઉદય અત્યંત આવશ્યક છે. તો જ્યારે પરદ્રવ્યને પોતાના અનુસાર પરિણમાવવાની ઈચ્છા કરી હોય ને કથનચિત કાકતાલીય ન્યાયથી એવું થઈ પણ ગયું હોય, તો એને પુણ્યનો ઉદય સમજવો જોઈએ. અમુક વાર જેમ કે શરીરનું એક્ઝામ્પલ લઈએ, શરીર પરદ્રવ્ય જ છે. શરીર અમુક વાર આપણે અનુસાર પરિણમી ગયું કે મારે અહીંથી ઊભા થઈને ત્યાં સુધી જવું છે, તો પુણ્યનો ઉદય છે. એ વખતે એવું યાદ નહીં આવે કે કેમ કે आज हूँ छो એવું માન્યું છે ને, હું આત્મા છું એવું ક્યાં માન્યું છે? मैं आत्मा हूँ ऐसा माना है क्या? मैं शरीर हूँ ऐसा ही माना है, इसलिए मैं यहाँ से वहाँ जा सकता हूँ, ऐसा मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस है. पर यदि बीमार हो, व्यक्ति उठ भी नहीं सके, रोग किसकी पर्याय है, किसकी अवस्था है? शरीर की अवस्था है. तो जब कोई व्यक्ति रोगी हुआ, उसको कोई रोग आया, तब वो ऐसा सोचे कि मैं यहाँ से उठ के वहाँ जाऊँ. इच्छा तो अभी भी की उसने, पर अब नहीं जा सकता है. पहले जा सकता था कुछ दिन पहले तक, तो उसको यूँ लगता था कि बस ये तो मैं कर सकता हूँ,
ये शरीर मेरे हिसाब से चल रहा है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा चलेगा, पर अभी तो नहीं चल पा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? था तो पर द्रव्य, पर पहले हमारे अनुसार हमारे पुण्य का उदय था, इसलिए उसका परिणमन हमारे अनुसार हो रहा था, इसलिए हमको ऐसा लगता था कि ये हमारे अनुसार चलता है। अब शरीर का परिणमन बदल गया है, रोग की अवस्था आ गई है, वो हमारे अनुसार नहीं चल रहा है, तो अब पता चल रहा है कि नहीं ये हमारे अनुसार चलता। ऐसे समय में भी अगर तत्व ज्ञान आए, उसका चिंतन करे और तत्व ज्ञान में स्थिर हो, तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। क्योंकि कभी कभी किसी वस्तु का स्वभाव हम अनुभव करते हैं तभी पता चलता है। किसी को कहा होगा कि भाई ये आपका मित्र है, वो इसका स्वभाव अच्छा नहीं, आप इससे दूर रहना, और उसको अपने उस मित्र के प्रति इतना राग होता है, तो वो उसके दोष कोई बताता है तो भी उसको समझ में नहीं आता है। थर्ड पर्सन ने बताया, उसको भी लगता है कि नहीं वो हमारे दोनों की मित्रता से कहीं ईर्ष्या करता होगा, इसलिए हमको ऐसा कह रहा होगा। पर जब स्वयं को अनुभव होता है कि वो मित्र उसका विश्वासघाती है या उसके लिए अहितकारी है, जब स्वयं को ऐसे 2-4 अनुभव आते हैं, तब उसको पता चलता है कि नहीं जो लोग कहते थे वो ठीक है। ये इसलिए कई चीज़ें हमारे अनुभव में आने के बाद हमको समझ में आती हैं। तो कभी कभी शरीर ऐसा है, शरीर वैसा है, अशुचि भावना है, शरीर दुर्गंधमय है, ऐसा ज्ञानियों ने बहुत बोध दिया, पर यहाँ तक वो आ गया, पर यहाँ तक आया नहीं। क्यों? वो उस मित्र की तरह, इस मित्र के प्रति इतना राग है कि कोई कितना भी कहे एकदम से राग छूटता, पर जब अपने अनुभव में आता है कभी कभी कि नहीं ये मेरे अनुसार परिणमन नहीं कर सकता है, मैं कितनी भी कोशिश करूं, तो ऐसा जब जीव को समझ में आ जाए, तब मुख्य रूप से बाह्य तब जो है वो इसके निरोध के लिए कि देहाध्यास, देहाभिमान जो बड़ा है वो कम हो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आचार्य कार्तिकेय स्वामी जब अशुचि भावना का वर्णन करते हैं तो बहुत अच्छी उन्होंने गाथा लिखी है। मणुयाणम असूयमयम विहीणा देह विनिमय जान तेसिम विरमण कज्जे तथ्यव ये अणुरत्ता। मतलब क्या कि मनुष्यों का यह शरीर ऐसा अशुचिमय, विहीणा मतलब विधि ने, प्रकृति ने जानबूझ के बनाया है, ऐसा उन्होंने लिखा है कि मनुष्यों का शरीर अशुचिमय प्रकृति ने जानबूझ के बनाया है। क्यों? तेसिम विरमण कज्जे, कि वे मनुष्य इससे विरक्त हो, इसका अशुचि स्वभाव देख के विरक्त हो और इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करें। पर दुर्भाग्य देखो, तथ्यव ये अनुरक्त, ये बार बार उसी में अनुरक्त होते हैं। इतना स्पष्ट बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा है कि प्रकृति ने इतना अशुचिमय शरीर बनाने के पीछे कारण है कि उसके ये स्वभाव देख के हम उससे विरक्त हो जाए, पर लोग तो मोह की महिमा इतनी है कि वापस उसी में, जिससे विरक्त होने के लिए कहा था, वापस उसी में वे अनुरक्त होते हैं। विष्टा का कीड़ा होता है, बार बार विष्टा में ही आ सकता है। ये क्या है? शरीर में क्या है? धातु और उपधातु। जितने इस विश्व में हमको पदार्थ जो घृणास्पद लगते हैं, कि जिनको हम देखना भी पसंद नहीं करते या जिनके छूने मात्र से स्नान करने का विधान है, हड्डी, चर्म, चमड़ा, मल, मूत्र, ये सब कहाँ भरे हुए हैं? रक्त, ये सब बस ये बाहर से इतना सुंदर आवरण दे दिया है इसको, इसलिए वो अंदर क्या है? वो कचरा। एक घड़े में अभी शरीर में जितना सामान भरा हुआ है वो सारा सामान किसी एक घड़े में भर के अपने सामने घड़े में भरे, फिर उस घड़े को पैक करके बहुत अच्छे से उसको सजा दे, फिर उसके ऊपर डीओ वगैरह, परफ्यूम वगैरह, जो भी सुगंधित जितने पदार्थ हैं वो सब लगा के दे दें और कहें कि आप अपने घर पे ले जाके इसको शोरूम में रखो। कौन रखेगा? फिर भी रखते हैं लोग। कौन रखते हैं? हम ही रखते हैं। यही वो घड़ा है। बार बार डीओ लगा के, परफ्यूम लगा के, न जाने कितने कितने सुगंधित पदार्थ ने, अभी ठंड आ गई है तो पता नहीं बॉडी लोशन ने, वैसलीन ने, पता नहीं क्या क्या, कैसे भी करके इसको अच्छा रखना चाहते हैं, पर अंदर क्या है? हमारे सामने ही भरा हुआ है, हम देखते ही रोज। ये इस शरीर के अंदर वही जैसे कोई घड़ा हमको भर के दे रहा है,
ऐसा ही वो आचार्य कहते हैं कि प्रकृति ने ये शरीर बनाया इसलिए कि ताकि इसको देख के विरक्त हो, पर लोग देखो मोह का कैसा महात्म्य, वापस उसी में अनुरक्त हो जाते। तो ये एक एग्जाम्पल लिया हमने इच्छा में। इच्छा का स्वरूप क्या था? पर द्रव्य को अपने अनुसार परिणमाने का भाव, वो इच्छा। अब यही नहीं परिणमता है जो हमेशा साथ रहता है, हमेशा मतलब भव पर्यंत। एक क्षेत्र होगा संश्लेष संबंध है ना, क्षीर निर्वत, दूध पानी की तरह, जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ ये शरीर भी साथ में। जब इतना पास में है आत्मा के पास, आत्मा जैसे परम पवित्र पदार्थ के साथ ऐसा ये परम अपवित्र पदार्थ लगा हुआ है, वो भी हमारे अनुसार परिणमन नहीं कर सकता। तो इससे अत्यंत भिन्न ऐसे स्त्री, पुत्र, मित्र, मोबाइल आदि सारी वस्तुएं, चेतन अचेतन सारी वस्तुएं हमारे अनुसार कैसे परिणमन करेंगी? थोड़ा सा इसके ऊपर कोई विचार करे तो नियम से इससे विरक्त हो सकता है। खाली विचार की आवश्यकता है, क्योंकि जितना भी ये अज्ञान है वो अविचार के कारण है। कृपाळुदेव लख्યું છે ને, બધું અવિચારે કરી બધું છે, तो ये सब अविचार के कारण है। थोड़ा सा भी अगर इस पे विचार किया जाए तत्वतः पूर्वक शांति से, तो हम किसी को परिणमाने की इच्छा नहीं करेंगे। आत्मख्याति टीका में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने लगभग बंध अधिकार में 168 समथिंग कलश है, उसमें बहुत अच्छा एक कलश लिखा है, सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान्मरण जीवित दुःख सौख्यम् अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुःख सौख्यम्। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान् मरण जीवित दुःख सौख्यम्। संसार में जितने भी जीव हैं वे स्वकीय मतलब अपने अपने कर्मोदयान, कर्मों के उदय के हिसाब से सुख, दुख, जीवन, मरण इत्यादि को प्राप्त करते हैं। यह सर्वम सदैव नियतम भवति, ये नियम से ही होता है। ये ऐसा नियम है कि सभी जीव अपने अपने कर्मों के उदय के अनुसार जीवन, मरण, सुख, दुख को प्राप्त करते हैं। और कोई अन्य पुरुष किसी अन्य पुरुष के सुख, दुख, जीवन, मरण को करे, ऐसा मानना उसको क्या कहा? अज्ञानम एतत्, अज्ञान ही है। तो अब कहाँ परद्रव्य को अपने अनुसार परिणामाने की इच्छा होगी? जब ये कहा कि ये तो अज्ञान है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है बाहर में दूसरे जीवों के प्रति उनका सुख दुख, हमको मिथ्या अहंकार ममकार के कारण कर्तापना आ जाता है कि मैं हूं इसलिए इसका ऐसा हो रहा है, या वो है इसलिए मेरा ऐसा हो रहा है। तो उस अज्ञान से हमको निवृत्त होना है और ऐसी इच्छाओं का हमको धीमे 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 निरोध करना है। तो वही इच्छाओं का स्वरूप हम समझ रहे थे। कौन सी इच्छा? पहले प्रकार की इच्छा कौन सी थी? कल जिसका विचार कर रहे थे, विषय सेवन की इच्छा। तो 5 इंद्रियों के विषयों पे विचार कर रहे थे, उसमें दर्शन इंद्रिय के विषय पे विचार कर रहे थे हम कि दर्शन इंद्रिय के क्या क्या विषय होते हैं। पहले तो वर्ण, लाल, काला, पीला, नीला, सफेद, और फिर अच्छे अच्छे इन नेत्रों को, मनमोहक दृश्यों को देखने की इच्छा। और जो अच्छा नहीं लगता है वो तो वैसे भी नहीं देखेंगे। तो उन देखने की इच्छा में जीव इतना व्यसनी हो जाता है। पहले तो सामान्य कौतूहल पूर्वक उसको देखने की इच्छा होती है, मनोहर दृश्यों को, कि क्या है, ऐसी जिज्ञासा इसमें क्या है, ऐसा मैं थोड़ा देखूं, अभी तक नहीं देखा है तो मैं देख लूं। जब तक देखा नहीं है तब तक ही देखने की इच्छा है। फिर धीमे 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 वो कौतूहल बढ़ता जाता है और वो बढ़ता 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 रुचि में कन्वर्ट हो जाता है, और वो रुचि धीमे 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 व्यसन का रूप ले लेती है। तो वो दर्शन इंद्रिय जैसे रसना इंद्रिय का विषय है तो वो व्यसन हो जाता है, स्पर्शन इंद्रिय का जो विषय है वो व्यसन हो जाता है, वैसे दर्शन इंद्रिय का भी जो विषय है वो क्या हो जाता है? व्यसन हो जाता है। एक बार जिसको ये इच्छाएं नहीं हैं वह धन्य है, पर हमको अगर कभी कोई ऐसी इच्छाएं हैं मनोरंजन के लिए कुछ भी देखने की, साधकों की बात चल रही है, सामान्य सांसारिक जीवों को तो परमार्थ का प्रयोजन ही नहीं है,
पर जो साधक हैं उनको ऐसा कुछ भी अपने को देखने की कोई ऐसा व्यसन नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, महीने में एक आध बार हमने कुछ देख लिया तो वो व्यसन नहीं है, पर नित्य हमको कोई देखने की इच्छा होती है तो वो हमारे लिए, भले वो मनोरंजन, हमारे लिए मनोरंजन के लिए बहुत कुछ है। साधक का मनोरंजन तो देवशास्त्र, गुरु के प्रति भक्ति, स्वाध्याय, ध्यान और स्वरूप में, साधना में ही लीन होना चाहिए। पर अगर कुछ ऐसा है तो हमको उस विषय का धीमे धीमे निरोध करने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर है कर्णेंद्रिय। कर्णेंद्रिय का विषय क्या है? 7 स्वर, ठीक है। और वाद्य यंत्र, हाँ वो भी है, वाद्य यंत्र समझ लो, 7 स्वर, 7 स्वर समझ लो सैद्धांतिक रूप से। आध्यात्मिक रूप से कर्णेंद्रिय का विषय क्या है? विषय नहीं है वो, हाँ એ જ છે આધ્યાત્મિક રૂપે, એટલે કાનમાં શું, જેમ કે સુગંધ દુર્ગંધ આપણે વાત કરીએ એમ કાનમાં શું આવે, શું પડે તો સારું લાગે આપણને? वो शब्द निंदा અને પ્રશંસા, આ કર્ણેન્દ્રિયના વિષય છે આધ્યાત્મિક સાધક માટે। આ વિષય છે આપણી માટે। જ્યારે નિંદાના સ્વર પડે ત્યારે ને જ્યારે પ્રશંસાના સ્વર, આપણી પ્રશંસા ચાલતી હોય તો ગમે તે કામ કરતા હોય એટલું આનું શોભક્ષમ વધી જાય ને કર્ણેન્દ્રિયનું, કે 4-5 રૂમ આગળ વાત ચાલતી હોય તો પણ સંભળાય, નિંદા ચાલતી હોય તો પણ આવું, ખાલી નામ આવવું જોઈએ કે હા અમારું નામ આવ્યું, અરે શું વાત ચાલે છે, ત્યાં બધું પછી ઉપયોગ કોઈ વસ્તુમાં લાગે નહીં। આ વિષયનો નિરોધ કરવો। प्रशंसा के सुमन बिखरे तो मन में मान महकाया, मिले निंदा के कुछ स्वर तो हृदय में द्वेष अकुलाया, हृदय में द्वेष अकुलाया। रहो समता में सहजानंद, जीवन का सार इसमें है। रहो चेतन चिदानंद में, जीवन का सार इसमें। तो निंदा और प्रशंसा से हमको विरक्त होना है। ये भी व्यसन है, अपनी प्रशंसा सुनने का भी व्यसन है। और आत्मश्लाघा करना और सुनना, ये दोनों बड़ी कषाय, तीव्र कषाय के अंतर्गत आता है। कृपाळुदेव ने भी लिखा है आत्मश्लाघा करવું એ મોટી કષાય છે। ને કાર્તિકીય અનુપ્રેક્ષામાં આચાર્ય કાર્તિકેય સ્વામી પણ લખ્યું છે तीव्र કષાયના 3 લક્ષણ કયા એમાં? કાર્તિકીય અનુપ્રેક્ષામાં तीव्र કષાય એ ત્યાં સંવરને કે આશ્રવનું કદાચ કથન ચાલે છે, એમાં तीव्र કષાયના 3 લક્ષણ કીધા। કયા? अपपसंसण करणम, पहलू लक्षण अपपसंसण करणम। बीजू लक्षण पूज्ये सुवी दोष गहन शीलत्तम, पूज्ये सुवी दोष गहन शीलत्तम। ने त्रीजू लक्षण वैर धरणम च सुरम तीव्र कसायाण लिंगाणी। एवी कार्तिकेय अनुप्रेक्षानी गाथा है। अर्थात अपपसंसण करणम एटले પોતાની, અપ એટલે આત્મ, પસંસણ કર્ણમ એટલે પ્રશંસા કરવી। મન વચન કાય ત્રણેયથી લઈ લેવું। મનમાં ઈચ્છા થવી કે મારી પ્રશંસા થાય, વચનથી પોતાની પ્રશંસા કરવી, મનથી ઈચ્છું કે હું પણ કરું ને બીજા પણ કરે એવી ઈચ્છા, ને કાયાથી એ અનુસાર પ્રવર્તન કરવું। તો એ આત્મશ્લાઘા, સાંભળવાની પણ ઈચ્છા, કરવાની પણ ઈચ્છા ને સાંભળવાની બંને એમાં આવી જાય છે કે બીજાઓ મારી પ્રશંસા કરે, અને પછી પોતાની પ્રશંસા કરવી હોય તો વિવિધ રૂપથી, ધારો કે કંઈક એક્ઝામ્પલ કોઈ કામનું આપવું હોય તો પોતાનું જ એક્ઝામ્પલ આપે, અંદર એવું તર્ક કરે કે આ તો બીજાઓને પ્રેરણા મળે એટલા માટે હું એક્ઝામ્પલ, પણ ઘણા મહાપુરુષો કેટલા થઈ ગયા, કેટલા બધા એક્ઝામ્પલ છે, આપણું એક્ઝામ્પલ શા માટે આપવું? કેટલા મહાપુરુષો થઈ ગયા, એમનું એક્ઝામ્પલ આપવું કે આ રીતે કરવું। એટલે દરેક કાર્યમાં આપણો ઝંડો પહેલાં આગળ, પહેલાં થોડી આપણી પ્રશંસા કરવી ને પછી બધું કહેવું કે હા ભાઈ આમ હતું એમ,
તો કહેવું તો શું છે મુખ્ય રૂપે? એમાં આચાર્ય મહારાજે ઉપગુહન અંગની વ્યાખ્યામાં એક ચરણ એવો લીધો છે, નિય સુકિયમ ન પયાસયે લોય. એટલે નિય સુકિયમ, નિજ સુકૃત, ન પયાસયે લોય, કે લોકમાં પ્રકાશિત જે નહીં કરે એ ઉપગુહન અંગનો ધારી સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ છે. ઉપગુહન અંગમાં 3 વસ્તુ કીધી. એક તો આપણને ખ્યાલ જ છે કે બીજાના દોષોને ઢાંકવા, બીજાઓની નિંદા ન કરવી, એ 3 વસ્તુ કીધી. બીજાઓની જો ન કુણદી પરતત્તિમ એટલે બીજાની નિંદા ન કરવી, પરદોષમ ગોયદી બીજાના દોષ ઢાંકવા, નિય સુકિયમ ન પયાસી લોય, કે પોતાના દ્વારા કરેલા સારા કાર્યો કે સારા ભાવો બીજા લોકમાં પ્રકાશિત નહીં કરવા. એ જ્ઞાનીનું લક્ષણ છે, સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવનું લક્ષણ. એટલે જ્ઞાની જીવ હોય એ ગમે તે બાના કાઢીને પોતાની પ્રશંસા કરે એવો એ કોઈ ઉપાય કરે નહીં. કેમ કે અપપ્રશંસન કરનામાં તીવ્ર કષાયનું લક્ષણ કીધું છે, તીવ્ર કષાય સમ્યક દ્રષ્ટિને હોય નહીં. એટલે સાવધાન રહેવું. આપણેમાં ક્યાંય આ એક વસ્તુ હોય તો એનો બુદ્ધિપૂર્વક સાવધાનીપૂર્વક એનો નિરોધ કરવો, એનો ધીમે ધીમે નિગ્રહ કરવો. એટલે આત્મપ્રશંસા કરવી નહીં અને વધારે સાંભળવી નહીં. બીજાઓની કરવી પણ મિથ્યા પ્રશંસા નહીં કરવી. કોઈ કામ કાઢવું છે એટલા માટે બીજાની પ્રશંસા નહીં કરવી. ખરેખર એના ગુણાનુવાદને અર્થે, ગુણ પ્રમોદ ભાવને અર્થે બીજાની પ્રશંસા કરવી, પણ પોતાની નહીં. અપપ્રશંસન કર્ણમ પૂજ્ય સુવી દોષ ગ્રહણ શીલત્તમ. પૂજ્ય પુરુષોમાં પણ દોષ ગ્રહણ કરવાનો સ્વભાવ. આ એક બીજું કારણ કીધું તીવ્ર કષાયનું. શું કીધું? પૂજ્ય પુરુષોમાં, ઘણા જીવોમાં એક સહજ આ દોષ હોય છે અનાદિના સંસ્કારને લીધે, કે જે મોટા પુરુષો હોય, પૂજ્ય પુરુષો, એમાં ઘણા ગુણો હોય છે, પણ એમાંથી જે એમની ન્યૂનતા છે એ જ ગ્રહણ કરવી. દોષ ઘણા છે પણ આ ગુણ ઘણા છે, પણ દોષ થોડા પણ હોય તો દેખાય એ જ एकदम वो चिड़िया की आँख की तरह दृष्टि दोष पे ही जाती है. गुण बहुत है पर गुण दिखते, तो ये समझना तीव्र कषाय का लक्षण है, ऐसा आचार्य महाराज ने कहा. अगर ऐसा स्वभाव कहीं भी दूर दूर तक हमारे मन में है तो इसको दूर करने का प्रयत्न, स्वयं की प्रशंसा नहीं करना और पूज्य पुरुषों में दोष नहीं देखना, प्रचारित करना तो बहुत दूर की बात है, दूसरों को कहना तो बहुत दूर की बात है, स्वयं देखना भी नहीं. क्योंकि निंदा की परिभाषा क्या की? सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने, साहिब जी बहुत बार ये परिभाषा लेते हैं, वो साहिब जी को बहुत प्रिय है. तथ्यस्य वा दोषस्योद्भावनम प्रति इच्छा निंदा. साहिब जी एक स्वाध्याय कीधुं छे के सर्वार्थ सिद्धिनी परिभाषाओं सांभळीने मगज काम नहीं करे, एवी निंदानी परिभाषा तथ्यस्य वा अतथ्यस्य वा એટલે સંધિ વિચ્છેદ કરીએ. તથ્ય એટલે વિદ્યમાન ને અતથ્ય એટલે અવિદ્યમાન. કોઈના વિદ્યમાન કે અવિદ્યમાન એવા દોષ જોઈને એમને ઉદ્ભાવન, એમને કહેવાની ઈચ્છા પણ થવી, એ શું કહેવાય? નિંદા. દોષોસ્યોદ્ભાવનમ પ્રતિ ઈચ્છા નિંદા. અહીંયા કોઈને કહેવાની તો વાત જ નથી. યોગોમાં આવી ગયું એ તો તીવ્ર કષાયનું લક્ષણ થઈ જાય. નિંદા યોગમાં આવી ગઈ એટલે વચનમાં આવી ગઈ, ને કોઈને આપણે કોઈ સાથે એ મહાપુરુષની કે કોઈની પણ નિંદા કરી તો એ તો યોગોમાં આવી, એ તો તીવ્ર સ્વરૂપ લીધું. અહીંયા તો એવું કીધું કે ઈચ્છા પણ થઈ અંદરથી કે આના દોષ મારે કોઈને કહેવા છે, તો એ નિંદા કહેવાય છે. એટલે અંદર એવા ભાવ ઉદ્ભવિત થાય તો તત્વજ્ઞાનથી એ ભાવોને રોકવા, કે આ જ્ઞાનીઓનું લક્ષણ નથી, આ તીવ્ર કષાયનું લક્ષણ છે, ને તીવ્ર કષાયોનું સેવન મારે કરવું નથી. ત્રીજું લક્ષણ કયું કીધું તીવ્ર કષાયનું? વેર ધરણમ ચ સુઈરમ. સુચિરમ એટલે લાંબા કાળ સુધી. વેર ધરણમ, વેરને ધારણ કરવું. તો વેર ધારણ કરવું એ કંઈક, એ વેરના મૂળમાં જ્યારે જઈએ તો કંઈ મોટો વિષય હોતો નથી, પણ પોતાના ઈગોના લીધે, અહંકારના લીધે આપણે એને મોટો વિષય બનાવી દઈએ ને બસ ક્ષમાયાચના કરી નથી શકતા, અહંકાર આડું આવે છે, એટલે એ વેર
નિયમથી ધીમે 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 વધે અને એ તીવ્ર કષાય કહેવાય. કેમ? ભવ વધારે. જ્યાં જીવ ગયો છે ત્યાં જવાની ઈચ્છા નથી, પણ તોય ત્યાં એની સાથે જવું પડે. કેમ? દ્વેષાત્મક ઋણાનુબંધ છે. ઋણાનુબંધ બે પ્રકારના હોય છે, રાગાત્મક અને તો ઋણાનુબંધોને લીધે જ જ્યાં જ્યાં બધા જીવ ભેળા મળે છે, કાં તો દ્વેષાત્મક કાં તો રાગાત્મક. પત્રાંક 128માં શું કીધું છે ઋણાનુબંધો માટે? કોઈ કાળે જેનું મુખ પણ જોવું નહીં, તેવા સ્ત્રી આદિ તેવા જીવોને ઘેર સ્ત્રી આદિક કે જંતુ આદિકપણે જન્મવું પડ્યું. કોના લીધે? દ્વેષાત્મક ઋણાનુબંધ. રાગાત્મક હોય તો એના પ્રિય પાત્ર બનીને જન્મે, દ્વેષાત્મક હોય તો સેવક ભાવ, દાસ ભાવ, સ્ત્રી આદિક પ્રત્યે ને ત્યાં જઈને અપમાન જ. તો આવા ઋણાનુબંધો બાંધતા પહેલાં ધીમે 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 વિચાર કરો તત્વજ્ઞાનથી. કોઈ સાથે આપણે રાગાત્મક પણ નથી બાંધવા, દ્વેષાત્મક તો બહુ દૂરની વાત છે. કોઈ સાથે ઋણાનુબંધ બાંધવા જ નથી. જો અંદર રાગ એટલો બધો વધી ગયો છે અને મારે કોઈને પ્રત્યે કરવો જ છે એવું લાગે છે, તો દેવશાસ્ત્ર ગુરુ છે, જ્ઞાની છે, એમના પ્રત્યે તો એમના પ્રત્યેનો રાગ તો કોક ભાવમાં આપણને તારી દેશે. પણ જો દ્વેષાત્મક અનુબંધ કર્યો છે બીજા જીવો પ્રત્યે, તો એ ભવ વધારવાનું કારણ થાય છે. એટલે નિંદા અને પ્રશંસા બંનેથી બચવાનું. બીજાઓની પ્રશંસા કરવી, પોતાની પ્રશંસા કરવી નહીં, વધારે સાંભળવી પણ નહીં. અને નિંદા કરવાનો સ્વભાવ હોય તો ધીમે ધીમે એ સ્વભાવનો નિગ્રહ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આપણી નિંદા ચાલતી હોય તો વાંધો નહીં, આપણે કોઈની નિંદા કરવી નહીં. કેમ કે કબીરદાસજી શું કહે છે? નિંદક નિયરે રાખીએ આંગન કુટી છવાય, બિન પાણી સાબુન બિના નિર્મલ કરે સુભાય. નિંદક પુરુષ હોય એને ક્યાં રાખવો? આંગન કુટી છવાય. આપણા આંગણામાં એક કુટિયા બનાવીને ત્યાં રાખવાનો. એટલે નિયર એટલે કેટલો નિકટ રાખવાનો? કે આપણા ઘરમાં જ રાખવાનો. કેમ? બિન પાણી સાબુન બિના નિર્મલ કરે સુભાય. જે દોષ આપણને પણ નથી દેખાતા. કેમ કે એક અનાદિકાળીન વૃત્તિ છે, પરના દોષ જોવામાં દ્રષ્ટિ હંમેશા સૂક્ષ્મ થઈ જાય. બધાનો અનુભવ હશે. પોતાના દોષ જોવામાં એટલી સૂક્ષ્મ થતી નથી. ઘણો વિચાર કરવો પડે. જેટલો વિચાર કરીએ એવા અંદર તો આપણા તો ગુણ જ દેખાય, દોષ દેખાતા નથી વધારે. ને પરનું જોવું હોય તો એટલું સૂક્ષ્મ આકલન હોય છે આપણું, એકદમ સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ. તો જે નિંદા કરવાવાળો વ્યક્તિ છે આપણા દોષ આપણા કરતાં વધારે જાણે છે. એટલે એને કબીરદાસજી કીધું કે એને નિકટ રાખો, કે જે દોષો આપણા ઉપયોગમાં નથી આવતા એ પણ એ બતાવશે, તો આપણે એ દોષથી મુક્ત થવાનો ઉદ્યમ કરી શકીશું, એનો પુરુષાર્થ કરી શકીશું. એટલે નિંદક નિયરે રાખીએ એમ કીધું. તો આ પ્રકારે આ બધી વિષય સેવનની ઈચ્છા, એક ઇન્દ્રિયના વિષયનું વિષય સેવન. ઘણા જીવો, પંચેન્દ્રિય જીવોનો એક્ઝામ્પલ આવે છે. કોઈને શ્લોક યાદ છે? એક ઇન્દ્રિયના વશથી બધા જીવ મરે છે. હા, શ્લોક છે આખો, એક કંઈક મોટો શ્લોક છે, મીના મૃત્યુમ પ્રયાંતા કરીને. ચલો, આપણે શ્લોક તો નથી યાદ મને, પણ સ્પર્શેન્દ્રિયના વશથી હાથી કે જે शिकार करवा आवे छे, जो शिकार करने के लिए आते हैं हाथी का, तो वो बीच में बहुत बड़ा खड्डा करते हैं, उस पे सारा वो वनस्पति घास आदि बिछा देते हैं और इसके इधर इस पर हथीनी को खड़ा करते हैं. तो हाथी वो हथीनी के आकर्षण से आता है, फिर वो उसको आकर्षण इतना होता है कि कुछ देखता ही नहीं है, विवेक शून्य हो जाता है और वो उस गड्ढे में गिर जाता है और वो शिकारी जो आते हैं वो उसको बांध लेते हैं. तो स्पर्शेंद्रिय के वशीभूत होकर हाथी बांधा जाता है. फिर रसना इंद्रिय के वश से मछली, रसना इंद्रिय के वश से होके वो शिकारी द्वारा चली जाती है, मारी जाती है. और घ्राणेन्द्रिय के वश से भ्रमर, वो कमल की सुगंध में इतना आसक्त हो जाता है कि वो अंदर जाता है. फिर सूर्यास्त में जब कमल बंद हो जाता है, वो उसको पता है कि ये हो रहा है, पंचेंद्रिय वो जीव नहीं चतुरेंद्रिय जीव है भ्रमर, तो वहाँ अंदर जाता है और फिर वो बंद हो जाता है और फिर हाथी के पैर के नीचे आके उसका सर्वनाश हो जाता है. फिर दर्शन इंद्रिय के वश से पतंगा, कीट पतंग, तो वो जो
दिया जलता है तो उसमें जाके बस वो दर्शनेंद्रिय के वश की आशा से वहाँ पे जाके मृत्यु को प्राप्त हो, और कर्णेंद्रिय के वश से हिरण वो मधुर संगीत उसकी धुन में जाता है और शिकारियों के द्वारा पकड़ा जाता है उसका भी। तो आचार्य कहते हैं कि एक एक कर्ण परवशम अपि, एक एक कर्ण मतलब इंद्रिय, एक एक इंद्रिय के वश होके भी मृत्युम यान्ति जंतु जातम इदम, कि ये सारे जंतुओं का जो समूह मृत्युम यान्ति, मृत्यु को प्राप्त करता है। तो सकलाक्ष विषय लोलह, तो सारे पांचों इंद्रियों के विषय में जो आसक्त हैं उनका क्या होगा, कथमीय कुशली जनोन्य साथ, तो उनका कल्याण कैसे होगा। आचार्य ऐसा दुख व्यक्त करते हैं। ज्ञानार्णव में शुभ चंद्राचार्य ने लिखा है कि एक एक इंद्रिय के वश से ये जो प्राणी हैं सारे वो नाश को प्राप्त होते हैं। तो जो पांचों इंद्रिय के विषयों में आसक्त है, पांचों इंद्रियों के विषयों की इच्छा का निरोध नहीं कर पा रहा है, उसका कल्याण कैसे होगा, ऐसा दुख व्यक्त करते हैं। इसलिए जीवों को इंद्रिय विषयों की इच्छा से धीमे 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 पीछे हटना चाहिए, उसका निग्रह करना चाहिए। और इसी इच्छा निरोध को क्या कहते हैं, तप कहते हैं। इच्छा निरोध तप का मुख्य लक्षण। दूसरी इच्छा, ये उससे भी बड़ी इच्छा है, कषाय सेवन की इच्छा। कषाय सेवन की इच्छा में जीव जैसे क्रम से ले क्रोध करने की इच्छा, तो किसी जीव पे क्रोध आया तो सामान्य रूप से जो साधक जीव है वो तो तत्व ज्ञान से थोड़ा बहुत भी जितनी उसकी शक्ति है उतना उसको उपशमाने का प्रयत्न करता है, पर जब तक उसका क्रोध का कुछ निवारण नहीं होता तब तक अंदर से बहुत व्याकुल रहता है। बाकी जीवों को तो किसी पे क्रोध आया तो कब मैं उसको जाके ये क्रोध मेरा व्यक्त कर दूं, वचन से, काय से, कैसे भी करके, तो वो उस इच्छा के कारण हमेशा व्याकुल रहता है। मान की इच्छा इससे भी ज़्यादा, किसी को कुछ बड़ा बनना है, जैसे हम लोक में देखते ही किसी को विधायक, एमएलए, एमपी कुछ बनना है, पॉलिटिक्स में देखते हैं हम, तो वो बनने के लिए सारे नैतिक अनैतिक सारी मर्यादाओं को लांघ जाते हैं। वो जीव कुछ भी करने में संकोच करते नहीं है। क्या, मान की इच्छा, बड़ा बनना है, लोगों की नज़रों में बड़ा बनने की इच्छा, इसको मान की इच्छा कहते हैं। तो इस मान की इच्छा के वशीभूत होकर जीव कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो ये सोचता ही नहीं है कि इससे कितने लोगों का अकल्याण होगा, सामाजिक दृष्टि से कितना नुकसान हो सकता है, कितना अनैतिकपना इसमें आ जाता है, कुछ नहीं सोचता है। इसलिए मान की इच्छा, मान की पूर्ति की इच्छा, इस इच्छा के वशीभूत होकर जीव आत्महत्या भी कर लेता है। મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશકમાં એક એક કષાયનું વર્ણન કર્યું છે। તો એક એક કષાયને વશીભૂત થઈ જીવ એટલો આસક્ત થઈ જાય એ કષાય પૂરી કરવામાં કે જીવ આત્મઘાત પણ કરી લે છે, એવો એમાં મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશકમાં સારું નિરૂપણ કર્યું છે। तो ये मान की इच्छा ईगो के कारण दूसरों को भी नष्ट करने का प्रयत्न करता है, नहीं होता है तो स्वयं को भी नष्ट करने का प्रयत्न करता है और उसमें भी पीछे रहता नहीं है। तो ये ईगो को पूरा करना, मान को, ये केवल सामान्य सांसारिक व्यक्तियों की बात नहीं है, साधक जीवों में भी सारे दोष हैं। धीमे धीमे बस न्यूनाधिक रूप से जिसकी जितनी साधना अधिक, जिसका तत्व ज्ञान ज़्यादा विशिष्ट, ज़्यादा मजबूत, वो उतना उपशम कर पाता है कषायों का, और जितना कम उसको ये इच्छाएं ज़्यादा व्याकुल करती हैं। पर जब तक इस इच्छा का या तो तत्व ज्ञान के द्वारा निराकरण नहीं हो जाए या हम इस इच्छा की पूर्ति ना कर ले, तब तक दोनों कंडीशन में हम क्या रहते हैं, व्याकुल। इसलिए इच्छा मात्र क्षोभ का कारण है, व्याकुलता का कारण है। इसलिए कषाय सेवन की भी इच्छा का निरोध करना चाहिए। विशेष रूप से हमको मान के विषय में अधिक जागृति रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी साधना में बहुत बड़ा बाधक दोष होता है। क्यों? मान कभी भी साधना क्षेत्र में स्वच्छंद का रूप ले लेता है, और स्वच्छंद बहुत बड़ा अकल्याण है। हमको लगता है कि हम ज्ञानी की आज्ञा के अनुसार ही सब कर रहे हैं, पर कब हमारे जीवन में स्वच्छंद आ जाता है हमको पता नहीं चलता। इसलिए हो सके उतना ज्ञानी गुरु के सानिध्य में साधना करें, गुरु के द्वारा जो दृष्टि मिली है उसका अखंड निरंतर उस दृष्टि का स्मरण करें, कभी भी हमारे जीवन में स्वच्छंद ना आ जाए। इसलिए
पग पग पर उनकी वाणी का अनुसरण करें। हमारी मौलिकता से निर्णय करने से बचना चाहिए। मौलिकता अच्छी वस्तु है, मौलिक चिंतन, मौलिक साधना, ये सब अच्छी वस्तु है, पर वो कब तक अच्छी है और कब तक कल्याणकारक है, जब तक वो इनकी वाणी के अनुसार नहीं है। जो मौलिकता का रिजल्ट हमको मिल रहा है, परिणाम जो दिख रहा है, वो इनकी वाणी के अनुरूप होना चाहिए। ज्ञानियों परीक्षा करने का निषेध नहीं है। आगम में परीक्षा प्रधानी होने के लिए कहा है, आचार्यों ने कहा है, पर वो परीक्षा इनको गलत साबित करने के लिए या स्वच्छंद लाने के लिए नहीं है। इन्होंने जो कहा वो सत्य है, वो हमको भी मिलान करना है। मैथमेटिक्स जिन्होंने पढ़ी है, मैथ्स में इक्वेशन दे देते हैं कि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग या a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सॉल्यूशन दे दिया है आपको, आपको कुछ करना नहीं है। ये सत्य कैसे वो सिद्ध करना है। एक सूत्र दे दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये सत्य कैसे वो सिद्ध करना है, ये सत्य है कि नहीं, वो देखने की जरूरत, क्योंकि उसी की परीक्षा में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये जो लिखा है वो सत्य है। इसलिए जो वचन आचार्यों ने, ज्ञानियों ने कहे हैं, हमारी मौलिकता से उनको सत्य सिद्ध, वो तो सत्य ही है। अभी हमारी इतनी योग्यता नहीं है, हमारा इतना ज्ञान है, इसलिए हमको कहीं ऐसा लगता होगा, पर हमारी मौलिकता से उनको, हमारी मौलिकता उनके साथ मिलनी चाहिए। उनके साथ जब तक मिलती है तब तक वो मौलिकता मार्ग पे है और हम सही मार्ग पे हैं, नहीं तो वो मौलिकता स्वच्छंद के खाते में जाती है। इसलिए मौलिक साधना, मौलिक चिंतन आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है मोक्ष मार्ग में, पर वो इनसे मिलना चाहिए ज्ञानियों की। इसलिए स्वच्छंद नहीं है, इसका प्रमाण ही यही है कि हमारी साधना ज्ञानियों की आज्ञा के अनुसार, उनके अनुभवों के अनुसार हो रही है। क्योंकि जो मार्गदर्शक है वो मार्ग बताता है। यहाँ से कोबा गांव तक जाना है, हम कभी मान लो गए नहीं, रास्ता कैसा है वो भी नहीं पता है, तो जो वहाँ रोज आता जाता है हम उसको पूछेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रामाणिक बात भी किसकी रहेगी, जो रोज आता जाता है उसकी, कि रोज जो कभी गया नहीं है, बस यहाँ बैठे बैठे लेक्चर दे रहा है कि ऐसे करो वैसे करो, वो तो कभी गया ही नहीं। तो मार्ग पामेलो पमाड़ी शके छे, तो वो कृपालु देव का वचन है। तो जिसने मार्ग प्राप्त किया है, ऐसे ज्ञानियों की बात अधिक प्रामाणिक होनी चाहिए। तथा रूप सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वक्ताओं की अपेक्षा ज्ञानियों के वचन अधिक प्रामाणिक होने चाहिए। उनका चिंतन क्षोभक्षम कुछ वक्ताओं का अधिक हो सकता है, नो डाउट, क्षोभक्षम सबका कम ज़्यादा होता है, तो क्षोभक्षम के आधार पर बात माननी नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग मोह के कम या ज़्यादा होने के अधीन है, क्षोभक्षम ज्ञान के कम या ज़्यादा होने के अधीन नहीं है। इसलिए हमारी मौलिकता ज्ञानियों की बातों से, ज्ञानियों की वाणी से मिलनी चाहिए, तभी वो मौलिक होता है। बाकी कषाय की एक परिभाषा बहुत अच्छी की है उपदेश छाया में, एग्जैक्ट मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, पर ऐसी उसका भाव ऐसा है कि જ્ઞાનીઓ કહે છે કે આ કલ્યાણ રૂપ નથી, છતાંય એ કરવામાં દુરાગ્રહ રાખવો તે કશાય। બહુ સુંદર પરિભાષા છે। કઈ આંકમાં છે, લગભગ 8મી કે 7મી આંકમાં છે। જ્ઞાનીઓ કહે છે કે આ કલ્યાણ રૂપ નથી, આ ન કર, છતાંય એ કરવાનો દુરાગ્રહ રાખવો, એનું નામ કશાય। તો આ કશાયનો વ્યાપક સ્વરૂપ બતાવ્યો કૃપાળુદેવ, જ્ઞાનીઓની અલૌકિક વાણી છે। તો આ સ્વરૂપ સમજીને, સાંભળીને એ કષાય સેવનની ઈચ્છાનો નિરોધ કરવો। એટલે શું વાત ચાલે છે, માન ઈચ્છાના પોષણની। તો સ્વચ્છંદ જ્યાં આવી જાય, આપણે સાધક માટે માન ત્યાં જ છે ને, સાધનામાં સ્વચ્છંદ આવવું એ જ માન છે ને, એ જ સૌથી ઘાતક છે। તો એનો બને એટલો નિરોધ કરવો। પછી માયાની ઈચ્છા, माया करने की इच्छा क्यों होती है? एक्चुअली मान और लोभ के कारण नहीं होती। कभी कुछ बड़ा बनना है, मान की कोई इच्छा हुई, उसके पोषण के लिए हम सारे उपाय कर डालते हैं, उसमें ये छल कपट सब आ जाता है। बस ये होता है कि कभी कोई ज़्यादा बुद्धिमान होता है तो वो अपने इस छल कपट को तर्क या चतुराई का नाम दे देता है। पर कितने भी नाम दो, माया तो माया ही है, छल कपट तो छल कपट ही। हम कोई भी नाम बदल दे,
कर्मों को उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने भाव किए और वो आके लग जाएंगे, हमें बांध लेंगे। तो लोभ के वश होके या मान के वश होके, किसी न किसी काम के वश होके, ईर्ष्या के वश होके, किसी न किसी कषाय के वश होके ही माया का आचरण होता है और माया करने की इच्छा, छल कपट करने की इच्छा होती है। इसका सर्वोत्तम उपाय है कि जिन्होंने इस कषाय के ऊपर विजय प्राप्त की, ऐसे सरलता संपन्न संतों की संगति करना, उनकी वाणी को बार 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 हृदय में अवगाहित करने का प्रयत्न करना, क्योंकि छल कपट को जीतने का सर्वोत्तम साधन है। उनकी निर्दोषता, उनके योगों में जो अवक्रता है, वक्रता रहित जो योगों में अभिव्यक्ति है, वो देख के हमको उनके प्रति महात्म्य आता है। साहिब जी में बहुत बड़ा गुण था जो बहुत दुर्लभ है। सरलता गुण बहुत दुर्लभ है और साहिब जी में टपकती थी सरलता। जैसे वात्सल्य साहिब जी में टपकता था, ऐसे सरलता साहिब जी में एकदम योगों में एक रूपता, बालक समान निर्दोषता। तो इसके ऊपर महात्म्य आना चाहिए कि किसी को भी वश कर लेता है, ये गुण ऐसा है, किसी को भी प्रभावित कर देता है। और हमारे तो मोक्ष मार्ग में बहुत काम का है, बहुत, क्योंकि सरलता सब गुणों की जननी है। सरलता, एक सरलता नहीं है और बाकी सब गुण हैं, तो वो गुण कुछ काम के नहीं है, क्योंकि सरलता के बिना उनका वो सब निष्प्रभाव है, निष्तेज है, उनमें कोई तेज नहीं है, उन गुणों का कोई अर्थ नहीं है। वो गुण परमार्थ में कल्याणकारी नहीं हो सकते सरलता के बिना, क्योंकि जो जीव असरल है वो कभी बेचैनी से रहित नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता, वो कभी उच्च प्रकार का ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि चित्त हमेशा विक्षेप को, क्योंकि असरलता मायाचारी सबसे ज़्यादा अपवित्र करने वाली कषा है। चित्त को सबसे ज़्यादा अपवित्र करने वाली, मन को हमेशा हमेशा, चलो क्रोध तो जब क्रोध का उदय आया तब व्यक्ति उसके थोड़ा अधीन हो गया, मान का उदय आया तब अधीन हो गया, पर ये हमेशा चित्त में घर बना के रखती है। तो ये मायाचारी को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी में स्वभाव से ही कम होती है, वे पुरुष धन्य हैं, तो उसको और कम करने का प्रयत्न करें, और हम अपने स्वभाव का निरीक्षण स्वयं कर सकते हैं, इसलिए इससे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। और अंतिम है लोभ। लोभ पाप को बाप बखाना। इस कषाय, इसके कारण जितने भी खराब भाव हैं, खोटे भाव हैं, वो सब भाव इसके अंदर गर्भित, क्योंकि इच्छा का प्रकारांतर, जिसकी हम बात कर रहे हैं उसी का प्रकारांतर क्या है? लोभ। इच्छा किसके अंतर्गत आती है? लोभ के अंतर्गत। ये जितना स्वरूप समझ रहे हैं तब का, वो सब उसके अंतर्गत आ जाता है। इसलिए लोभ का भले प्रकार से, इसलिए संतोष गुण का, जो जितना कर्म के उदय से हमको प्राप्त है उसी में संतुष्टि रखना, जो जितना सहज कर्मों के उदय से प्राप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, बस ऐसी भावना रखना। और इस भावना को रख के संतोष को धारण करना, क्योंकि संतोषी सदा सुखी। संतोषी जीव हमेशा, जिसको कुछ भी चाहना है, लोभ है, वो जीव कभी सुखी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि सुख का लक्षण कहा निराकुलता, और वो हमेशा व्याकुल रहता है, व्याकुल ही व्याकुल, व्याकुल ही व्याकुल रहता है। इसलिए इसको भी जीतने का, मारी आशा तृष्णा पुनी पापीनी सापीनी दो, એવું છે ને કઈ સુંદરદાસ जी का है ना, मारे काम क्रोध लोभ मोह पीसी डारे, इंद्रिय कतल करी कियो रजपूतो है, मार्यो महा मत मार्यो मन अहंकार मीर नहीं, हाँ, मार्यो अहंकार मन मार्यो मन, ऐसा करके कुछ है कि रजपूतो है, ऐसा करके कुछ दूसरी लाइन है। मारी आशा तृष्णा पुनी पापीनी सापीनी दऊ, सबको संहार करी, वो लास्ट में, वो तो लास्ट में, मारी आशा तृष्णा पुनी पापीनी सापीनी दऊ, सबको संहार करी निज पद पहुँचो है, सुंदर कहत ऐसो साधु कोई शूरवीर, वेरी सब मारी के निश्चिंत होई सूतो है। तो आशा और तृष्णा को पापीनी और सापीनी कहा है। तो
तो इनको दूर से ही त्यजना, लोभ को दूर से ही त्यजना और स्वस्वरूप तक पहुँचने का बने उतना उद्यम करना चाहिए। इच्छा निरोध, जितना जितना इच्छा निरोध, उतना उतना व्याकुलता का त्याग, उतना उतना आकुलता का त्याग और उतना उतना स्वरूप में स्थिति, स्वरूप में अवस्थान होता है। इसलिए इन इच्छाओं का निरोध करने में हर प्रकार से हमारा श्रेय है, हमारा कल्याण है। ओम। आज इतना ही, कल अन्य विचार करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। 9 वर्ण मुकार। ओम। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की, सद्गुरु देव की, परम कृपाळु देव की जय। सद्गुरु वंदन, जय सद्गुरु वंदन, जय सद्गुरु, जय सद्गुरु।